Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine. I am your maths teacher. Take out your maths book and take out the very first chapter. The first chapter name is large numbers. So इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं बड़े नंबर्स के बारे में. हमने पहले भी नंबर्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, कैसे 1 डिजिट नंबर होता है, 2 डिजिट होता है, फिर 3, फिर 4, 5, 6. अब हम और भी बड़े नंबर के बारे में जानेंगे. ओके. So before starting this chapter, as you can see, warm-up exercise is given to you. Lata is playing a board game that involves rolling dice. लता जो है वो एक बोर्ड गेम खेल रही है जिसमें रोलिंग डाइस को इन्वॉल्व किया गया है. She threw 5, 6 side dice and the numbers that came up were 3, 2, 1, 4 and 6. अब उसने क्या करा, उसने 5, 6 साइड वाली जो डाइस होती है वो थ्रो करा और उसमें जो नंबर्स आए वो थे 3, 2, 1, 4 और 6. लता wants to know the largest and the smallest numbers that can be made by these 5 numbers. अब लता को जानना है कि कौन से कितने बड़े नंबर कितने छोटे नंबर से अरेंज हो सकते हैं. ठीक है, उसे ये जानना है. रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ डिजिट नहीं करना है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, फर्स्ट वाले में राइट द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल डिजिट. यू हैव टू राइट डाउन 5 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट. ओके, जैसे कि अब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बोला है, बड़ा 5 डिजिट नंबर बोला है. ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले आएगा 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1. ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 6, 4, 3, 2, 1. ओके, so the answer is 64,321. This is the largest 5 digit number. Okay students, now the next one is write the smallest 5 digit number using all digit. Now here you have to write down the smallest 5 digit number using all the digit. Okay, so the number will be like 1, 2, 3, 4, 6. That means 12,346. Like this you have to write down the largest and the smallest number. Okay, now let's start this chapter. 9 digit numbers. So यहाँ पर 9 digit number की बात हो रही है. 9 digit numbers have 9 places. 9 digit number में 9 places होते हैं. In Indian place value chart, the 9 places are grouped into 4 periods. 9 places को 4 period में group किया गया है. All places and periods start from the rightmost, and all the places and all the periods they start from the rightmost. Okay. So here Indian place value chart is given, and here you can see the periods, and you can also see over here the different periods. Like it start from 1, see 1 से start होता है, फिर 1000, फिर lakh, फिर crore. Okay, and here you can see places and values. ठीक है, places and values आपको यहाँ पर दिए गए हैं और उनके symbols भी आपको दिए गए हैं. So places and values में पहला आपको दिया है ones, then there is tens, then there is hundreds, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. Okay, और इनके शॉर्ट फॉर्म भी आपको दे रखे हैं OTH, TH that is for 1000, TTH is for 10,000, L for lakh, TL for 10 lakh, C for crore and TC for 10 crore. These periods from right to left are, अब right to left तक ये periods कौन कौन से हैं, ये है ones, thousand, lakhs and crore. पीरियड्स की बात हो रही है, यानी कि वंस पीरियड में आ जाता है वंस, टेंस, 100, 1000 में 1000, 10,000, लाख में लाख, 10 लाख, करोड़ में करोड़, 10 करोड़. In any given numeral starting from the rightmost, the first 3 places make the ones period. जो पहले के 3 places होते हैं वो ones period को बनाते हैं. The next 2 places जो है वो बनाते हैं make the 1000 period को बनाते हैं, and the next 2 places make the lakhs period. और जो आगे के 2 पीरियड होते हैं वो लाख पीरियड को बनाते हैं, एंड द नेक्स्ट 2 प्लेसेस जो है वो करोड़ पीरियड को बनाते हैं. इन अ गिवन न्यूमरल वी सेपरेट द पीरियड्स बाय यूजिंग कॉमा. अब गिवन नंबर में हम सेपरेट करते हैं पीरियड को कॉमा को यूज करके. मार्किंग पीरियड्स हेल्प अस टू रीड एंड राइट लार्ज नंबर्स. सो ये जो मार्किंग पीरियड है इससे कि हमें मदद मिलती है कि हम इजीली पढ़ पाते हैं बड़े और छोटे नंबर को. ठीक है, आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है, अरेंज द डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. आपको यहाँ पर अरेंज करना है नंबर्स को. ठीक है, राइट देम बाय सेपरेटिंग द पीरियड्स विद कॉमास. सो आपको यहाँ पर इनको लिखना है और सेपरेट करना है कॉमा से. ठीक है, जैसे कि आपको फर्स्ट नंबर यहाँ पर दिया है 38,465. ओके,
सो दैट मीन्स 5 जो है वो 1s प्लेस में आएगा, देन उसके बाद 6 जो है वो 10s प्लेस में, 4 100 प्लेस में, 8 आएगा 1000 प्लेस में और 3 आएगा 10,000 प्लेस में। सो द आंसर इज 38,465। तो इस तरीके से आप इन्हें ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है। बाकी नंबर्स को भी आपको ऐसे ही ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक बड़ा सा नंबर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 है वो 1s में आएगा, 8 आएगा 10s में, 7 आएगा 100 में, 1 आएगा 1000 में, 1 आएगा 10,000 में, उसके बाद 9 आएगा आपका लाख में, फिर 1 आएगा आपका 10 लाख में, 5 आएगा करोड़ में, 3 आएगा 10 करोड़ में। सो द आंसर इज 35 करोड़ 19,11,782, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टू रीड अ न्यूमरल। अब हम कैसे न्यूमरल को पढ़ सकते हैं? सो वी रीड अ न्यूमरल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम नंबर को जब भी पढ़ते हैं तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ओके। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। सो ऑल द डिजिट इन द सेम पीरियड टुगेदर एंड नेम ऑफ द पीरियड एक्सेप्ट वंस। तो सभी जो डिजिट है सेम पीरियड के उनको एक साथ लेकर चलते हैं और नेम ऑफ द पीरियड को बोलते हैं, सिर्फ वंस पीरियड को नहीं बोलते हम, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जब भी हम नंबर को बोलेंगे तो ऐसे करके बोलेंगे 21,45,386। कभी भी हम वंस पीरियड को नहीं बोलते हैं, हम लाख पीरियड को, 1000 पीरियड को बोल देते हैं, 100 पीरियड को बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही 5,56,96,278, ऐसे ही 12 करोड़ 35,47,689, ओके। तो इस तरीके से हम इन्हें बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट थिंग इज टू राइट अ नंबर, read each period and write its digit in the place value chart. Now what you have to do, आपको हर एक पीरियड को अच्छे से पढ़ना है और उनके डिजिट को लिखना है प्लेस वैल्यू चार्ट में। पुट 0 फॉर एन एम्प्टी प्लेस, एम्प्टी प्लेस में आपको 0 पुट करना है। इंसर्ट कॉमास टू सेपरेट पीरियड्स, आपको कॉमा को इंसर्ट करना है ताकि आप पीरियड को सेपरेट कर सको। जैसे कि आपको एग्जाम्पल 1 दिया है 73,52,422। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, वंस में आप करोगे 2 एंड देन 4 इधर, फिर उसके बाद 1000 में 2, 10,000 में 5, लाख में 3 और 10 लाख में 7। सो ये नंबर हो जाएगा आपका 73,52,422, ओके। नाउ एग्जाम्पल 2 में आप देखो 90 करोड़ 5,06,044। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 90 करोड़ 5,06,044। जहाँ पर कुछ नहीं है तो वहाँ पर 0 पुट किए गए हैं, ठीक है। सो दिस इज योर नंबर। Now let's move into the exercise part, exercise 1A. So the first question is write the number name for each of the following numeral. आपको हर एक न्यूमरल का नंबर नेम लिखना है। जैसे कि आपको यहाँ पर फर्स्ट वन दिया है 15,07,576, तो आप लिखोगे यहाँ पर 15 FIFTEEN 15 lakh LAKH 7,000 SEVEN 7,000 THOUSAND 1,000 505 FIVE 100 HUNDRED 100 76 SEVENTY 76, ओके। तो इस तरीके से आप नंबर नेम को लिखोगे, ठीक है, हर एक नंबर का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नेम। नंबर नेम का आपको न्यूमरल लिखना है, इसका ऑपोजिट करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया 70,20,506। सो 70,20,506 आप कैसे लिखोगे? आप यहाँ पर लिखोगे 70 लाख देन 20,506, ओके, दिस इज योर नंबर। तो इस तरीके से आप न्यूमरल फॉर्म में लिखोगे नंबर नेम को। Now the next topic over here is face value and place value of a digit. So face value of a digit is face value of a digit in a number is the value of the digit itself. जो face value होता है वो value ही होता है digit का खुद ब खुद, ठीक है। For example face value of 4 in this number is 4 only. face value जो है 4 का इसमें 74,32,005 में 4 का face value 4 ही रहेगा, सेम ही रहेगा। Place value of a digit in a number is the value of the digit because of its place in the number. अब जो place value होता है उनके place के according उनकी value होती है, ठीक है। For example जो digit 4 है उसकी value क्या है? उसकी value है lakh, क्योंकि वो lakh place में है, ठीक है। So the digit 4 is at lakh place in this 74,32,005. So the place value of 4 is in this number is 4 lakh. तो इस नंबर में 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 4 लाख होगा, जबकि फेस वैल्यू 4 ही रहेगा, ठीक है।
Now student, before moving further, here a box is given. Place value of a digit equals to its face value into place of the digit in the number. अब place value जो होता है digit का वो equal होता है उसके face value जिसको हम multiply कर देते हैं उसके place के साथ of the digit in the number. Okay, note that the face value and place value of 0 is always 0. जो 0 का face value होता है place value होता है वो हमेशा 0 ही रहता है, कोई और number नहीं होता, ठीक है. Now next example is find the place value of each digit in this number. So इस नंबर में आपको हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है. जैसे कि आपको नंबर दिया 67,45,031, तो यहाँ पर 1 जो है वो 1s प्लेस में है, 3 जो है वो 10s प्लेस में है, ठीक है, 0 100 प्लेस में है, 5,000 प्लेस में है, 4 10,000 प्लेस में है, 7 लाख में और 6 10 लाख में है, ठीक है. तो इस तरीके से आप इन नंबर को लिख सकते हो. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर. एक्सपेंडेड फॉर्म of a number shows the sum of the place values of all its digit. अब expanded form जो है वो sum दिखाता है of its value of the all digit. Okay, मतलब सभी digit का वो sum दिखाता है. We can write expanded form in 3 different ways. 3 अलग तरीके से हम expanded form लिख सकते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है पहला तरीका 45,72,389 आपको नंबर दिया है, तो 4 जो है वो 10 लाख में, तो 4 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 7 10,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 8 10 प्लस 9 1s, ठीक है. एक तरीका तो ये हो गया. दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि 4 इंटू 10 लाख, देन उसके बाद प्लस 5 इंटू 1 लाख प्लस 7 इंटू 10,000 प्लस 2 इंटू 1,000 प्लस 3 इंटू 100 एंड प्लस 8 इंटू 10 एंड प्लस 9 इंटू 1, ठीक है. या फिर तीसरा तरीका आपका ये वाला है कि 4 जो है वो 10 लाख में है तो 40 लाख, देन प्लस 5 लाख प्लस 70,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 9. तो इस तरीके से इन तीनों तरीके में से कोई एक तरीका आप अपना सकते हो, उसे कर सकते हो. अब यहाँ पर आपको जो नोट भी दिया गया है, द थर्ड वे इज द मोस्ट यूजुअल टू शो अ नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. जो तीसरा तरीका है बहुत ही काफी ज्यादा यूजुअल टाइप है, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा इजी भी है वो करने में. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज शॉर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर. मतलब कि एक्सपेंडेड का ऑपोजिट होता है ये कि नंबर को छोटा कर देना, कॉम्पैक्ट कर देना. डिजिट्स प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर प्लेस वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड शॉर्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर. जब हम डिजिट को प्लेस करते हैं उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ, तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं नंबर का. जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है 7 करोड़, ओके, एंड देन 40 लाख, 5 लाख, 90,000, 3,280 एंड देन 6. सो ये नंबर ऐसा हो जाएगा कुछ 7 करोड़ 45 लाख 93,286, ठीक है. Now student, let's move into the exercise part, exercise 1b. So the first question is write the place value of each digit in the following number. So आपको place value लिखना है हर एक digit का, ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पर एक नंबर दिया है 6,47,192, तो यहाँ पर 2 का प्लेस वैल्यू कौन सा है, 1s में है, 9 का 10s में है, 1 का 100 में है, 7 का 1000 में है, 4 का 10,000 में और 6 का 1 लाख में है, ठीक है. तो इस तरीके से इनका हर एक का प्लेस वैल्यू बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. अब हर एक नंबर को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. जैसे कि फर्स्ट वन आपको दिया है 45,28,537, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आप कैसे लिखोगे. 45 लाख बोला है तो 4 इंटू 10 लाख करोगे पहले आप, ठीक है. फिर उसके बाद प्लस 5 इंटू 1 लाख, उसके बाद आप करोगे 2 इंटू 10,000, फिर आप लिखोगे 8 इंटू 1,000, फिर आप लिखोगे 5 इंटू 100, देन 3 इंटू 10 एंड देन 7 इंटू 1. तो इस तरीके से आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे हर एक नंबर का, ठीक है स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म. अब आपको हर एक नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर दिया है 7 करोड़ and then 70 lakh, 5 lakh, 60,000, 8,232. So the number will be what? The number will be 7 करोड़ बोले तो 7 पहले करोड़ में आएगा, ठीक है. फिर 70 लाख बोले 70 लाख और 5 लाख यानी कि 75 लाख, ठीक है. फिर 68,000 और 232. तो इस तरीके से आप इस नंबर को लिखोगे, ठीक है. तो इस तरीके से आपको हर एक एक्सपेंडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक इज international system of numbers. So this international system of number is given to you.
तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीरियड्स है, मिलियंस है, थाउजेंड है, वंस है, इसमें डिवाइडेड हो रखा है, ये अलग अलग पीरियड है, 1 2 3 तीन पीरियड होते हैं, एक होता है वंस का पीरियड, एक होता है थाउजेंड का पीरियड, एक होता है मिलियंस का पीरियड, ठीक है। और आपको यहाँ पर प्लेसेस भी दे रखी है, जैसे कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे राइट से, वंस है, टेंस है, 100 है, 1000, 10,000, जो कि आप अपने इंडियन सिस्टम में भी हम देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है, पर यहाँ पर अब चेंज हो जाता है, लाख की बजाय यहाँ पर क्या यूज होता है, 100,000, फिर उसके बाद मिलियंस, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, ठीक है। यानी कि 1000 तीन ग्रुप में डिवाइडेड, मिलियन भी तीन ग्रुप में, ठीक है। और वैल्यू नंबर ऑफ डिजिट जो है वो आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। जैसे 1 डिजिट में 1, 2 डिजिट में 10, 3 डिजिट में 100, 4 डिजिट में 1000, 5 डिजिट में 10,000, 6 डिजिट में 1 लाख, 1 लाख नहीं बोलेंगे हम इसे, 100,000 बोलेंगे, ठीक है। और 7 डिजिट में 1 मिलियन, फिर 8 डिजिट में 10 मिलियन, और उसके बाद 9 डिजिट में हो गया ये 100 मिलियन, ठीक है। So international system is being followed by many countries. It is recognized by most of the countries. तो इसको बहुत सारी कंट्री फॉलो करती है और बहुत सारी कंट्री से रिकॉग्नाइज भी करती है. The rules for reading and writing the numbers are based on periods and places. और जो रूल है इसको लिखने का नंबर्स को, ये बेस्ड होता है उनके पीरियड्स में और प्लेसेस में. In international system, a comma is inserted after every 3 places starting from the right most. अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि कॉमा को इंसर्ट किया जाता है हर एक 3 प्लेसेस के बाद, ठीक है. ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द राइट मोस्ट से, ठीक है. Now here the next thing is comparison of Indian and international number system. अब कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम को, ठीक है. A comparison of place value chart of Indian and international system is given below. तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो इंडियन सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है. इंडियन सिस्टम में आप देख सकते हो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ है. और इंटरनेशनल में आप देख सकते हो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन है, ठीक है. तो यही डिफरेंस आपने देखा कि बस यहाँ से डिफरेंस जो है स्टार्ट हो जाता है 10,000 के बाद से ही. 100,000 लाख की जगह 100,000, 10 लाख की जगह मिलियन, ठीक है. ऐसे स्टार्ट हो जाता है डिफरेंस इनका. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एग्जांपल 1, इंसर्ट कॉमास एंड राइट इन वर्ड्स. आपको इस नंबर में कॉमा को इंसर्ट करना है और लिखना है इसे वर्ड में, नंबर नेम में. जैसे कि आप देख सकते हो 1, 10, 100, फिर उसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड देन करोड़. अगर हम इसे इंटरनेशनल में करेंगे तो अगर हम इसी नंबर को इंटरनेशनल में करेंगे तो 1, 10, 100, उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है. तो आंसर क्या आएगा इसका 25,730,882, जो कि आपका यहाँ पर भी लिखा हुआ है 25,730,832. 882, okay, not 32. Now the next is example 2. Write the numerals for the following. अब यहाँ पर आपको नंबर नेम दिया गया, आपको बस नंबर लिखना है, न्यूमरल लिखना है. आपको दिया है 472,546,364. ओके, सो 472 मिलियन, उसके बाद कॉमा आएगा, फिर उसके बाद 546,000 के बाद कॉमा, फिर 364. सो दिस इज द नंबर. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्टरनेट मेथड. अब कुछ अलग मेथड हम देखेंगे यहाँ पर. 11,24,325. सो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 लाख जब हम उसे जोड़ देंगे 1 लाख के साथ तो वो 11 लाख बन जाएगा, ठीक है. और उसमें अगर हम जोड़ देंगे 24,000 को, ठीक है, और 325 को, तो सेम एग्जैक्ट वही नंबर बनेगा, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज 1 मिलियन प्लस 100,000 प्लस 24,000 प्लस 325. ओके, दैट इज ऑल्सो द लाइक विल गेट द नंबर, ठीक है. इससे भी हमें एक नंबर मिलेगा, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज 1,124,325. ओके, दिस इज ऑल्सो सेम रिलेटेड टू द अपर वन ओनली, अबव वन. ओके, नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर हियर कम्स द पॉइंट लर्न बाय डूइंग. सो ये जो पार्ट है लर्न बाय डूइंग, दिस यू हैव टू डू बाय योर ओन, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स. ओके, now let's move into the exercise 1C. So the first one is insert commas and write the following in words as per the international system. So आपको यहाँ पर comma को insert करना है और आपको लिखना है इसे words में as per international system. words यानी कि number name form में आपको लिखना है, ठीक है. तो पहले इसमें हम comma insert करते हैं 1, 10, 100, फिर 1000, 10,000 और 100,000, फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है. फिर इसको आप लिखोगे कैसे 13,547,192. इस तरीके से आप इसे लिखोगे, ठीक है. Now the next one is write the numerals for the following. यहाँ पर आपको नंबर नेम दिया, आपको उसमें बस न्यूमरल लिखना है, ठीक है. आपको यहाँ पर दे रखा है 10,145,568. तो 10 मिलियन बोला है तो यानी कि 10 मिलियन आ जाएगा. फिर 135,000, फिर कॉमा आ जाएगा. फिर उसके बाद
568 568 आप यहाँ पर लिख दोगे। तो इस तरीके से आप नंबर नेम को न्यूमरल में चेंज करोगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज पर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो यहाँ पर आपको इन नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे कि आपको दिया है 3,51,003। अब यहाँ पर 3,51,003 बोला है, पर हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो पहले आप नंबर को वैसे लिख दो जैसे इंडियन सिस्टम में बोला गया है। 3 लाख बोला है, ठीक है, 51,000 बोला है, ओके, और 3 बोल रखा है, ठीक है, यानी कि वंस प्लेस में 3 है। और अब यही नंबर अगर इंटरनेशनल में होगा तो क्या हो जाएगा, ये इसी नंबर को आप इंटरनेशनल में करोगे तो ये हो जाएगा 351,003। ओके, 351,003 हो जाएगा ये। ओके, क्योंकि 3 जो है वो 100,000 के उसमें आ जाएगा, प्लेस में आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बाकी नंबर का भी न्यूमरेशन लिखना है। ओके, now the next topic over here is successor and predecessor. Successor is the number one more than a number. Okay, successor जो है वो एक नंबर 1 है जो कि more than a number होता है, यानी कि सक्सेस मतलब क्या, आगे बढ़ना, ठीक है। It comes just after the given number. ये एकदम एक नंबर के बाद ही आता है, यानी कि आपको एक नंबर दिया है उसके बाद जो आता है वो क्या होता है, सक्सेसर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको दिया है यहाँ पर 65,67,279, उसमें आपने 1 को जोड़ दिया तो बन जाएगा 65,67,280, ठीक है, ये आपका सक्सेसर है। और जो प्रेडिसेसर होता है, प्रेडिसेसर इज द नंबर 1 लेस देन अ नंबर। प्रेडिसेसर 1 लेस देन होता है एक नंबर के। इट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, ये गिवन नंबर के एकदम बिफोर ही आता है, पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल 75,63,278 में 1 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 75,63,277, ठीक है। Now the next topic over here is comparing numbers. First one, if the number of digits in the numbers to be compared is different, the number having more number of digit is greater. मतलब कि अगर जो number of digit है numbers में जिनको हम compare कर रहे हो different होगा, तो जिसमें ज़्यादा number of digit होंगे वही number बड़ा हो जाएगा। For example 1,25,37,129 इसमें 8 डिजिट्स है, ठीक है, जबकि 95,71,480 में 7 डिजिट है। तो ऑब्वियसली जो बड़ा, जिसमें ज्यादा डिजिट है वो बड़ा हो गया नंबर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज if the numbers have the same number of digits, compare the digits starting with the highest place value till the digits are different. Okay, तो अगर सोचो कि दोनों में डिजिट जो है, नंबर ऑफ डिजिट वो सेम है, तो आप इसे कैसे कंपेयर करोगे, आप देखोगे उनके शुरुआती का नंबर जो है वो कौन सा है। जैसे कि इसमें आपको दिया है 4,41,36,712 और इसमें 5,22,64,532। तो 4 और 5 में से कौन सा बड़ा हुआ, 5 बड़ा हुआ, इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा बड़ा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज if the numbers of digit is equal and the digit with the highest place value are also equal, move to the next place value digit. अगर सोचो नंबर ऑफ डिजिट भी इक्वल है और जो सबसे पहला नंबर दिया गया है वो भी इक्वल है, तो उसके बाद वाला नंबर आपको देखना है, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको दिया 59,84,268 और 57,43,089। तो यहाँ पर 5 तो कॉमन हो गया। अब आपको दूसरे डिजिट का बताना है, 9 और 7 में से कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, तो दैट मीन्स 59,84,268 इज ग्रेटर। ओके, now the next topic over here is ascending order. When numbers are arranged in the order of the smallest to largest, they are in ascending order. जब numbers को हम अरेंज करते हैं छोटे से बड़े फॉर्म में तो उसे हम ascending order बोलते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है, अरेंज करना है आपको इन नंबर्स को ascending order में, तो आप सबसे पहले देखोगे इनके नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, और इसमें देखोगे सबसे छोटा कौन सा है उसको आपको पहले लिखना है, ठीक है। जैसे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, सबसे छोटा नंबर हो गया है 38,1, यानी कि 38,25,278। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा 73,42,816। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा 86,53,534। नेक्स्ट वन 1,07,63,528 सबसे बड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करोगे। नेक्स्ट थिंग इज डिसेंडिंग ऑर्डर। When numbers are arranged in the order of the largest to the smallest, they are in descending order. जब numbers को हम अरेंज करते हैं बड़े से छोटे के फॉर्म में तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ठीक है, तो आपको इन नंबर को क्या करना है, अरेंज करना है बड़े से छोटे के फॉर्म में। तो सबसे बड़ा नंबर आपको देखना है, अगर आप देख रहे हो कि 99 कॉमन है तो उनके बाकी दूसरे डिजिट को आप देखो, ठीक है, उनमें से बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 98,44,933। फिर उससे छोटा है 97,57,863। फिर उससे छोटा है 92,32,527। फिर सबसे छोटा है 92,31,814, ठीक है।
नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 1D। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सक्सेसर ऑफ ईच। आपको हर एक नंबर के सक्सेसर लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि आपको फर्स्ट नंबर यहाँ पर दिया है 5,78,219, तो इसमें इसका सक्सेसर एक कदम आगे जाना है, तो ये हो जाएगा 5,78,220। ओके, तो इस तरीके से आपको बाकी नंबर के भी सक्सेसर बताने हैं, ठीक है, +1 कर देना है। नेक्स्ट थिंग इज राइट द प्रेडिसेसर ऑफ ईच। हर एक नंबर का आपको प्रेडिसेसर लिखना है, यानी कि आपको -1 करना है। जैसे कि आपको नंबर दिया है 58,36,940, इसमें आप 1 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 58,36,939। ओके, तो इस तरीके से इनका प्रेडिसेसर लिखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर आपको नंबर्स को कंपेयर करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 55,63,887 और 55,74,996। अब दोनों में 55 तो कॉमन हो गया, तो इनके बाद का डिजिट देखो 6 है, एक में 7 है, तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंपेयर करके बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा इक्वल है। नेक्स्ट थिंग इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़े फॉर्म में लिखना है। जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, इनके नंबर ऑफ डिजिट्स को देखोगे, अगर सेम है तो इनका सबसे छोटा नंबर आप लिखोगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें भी 7 डिजिट है, इसमें भी 7 डिजिट है और इसमें भी 7 डिजिट है। ओके, तो यानी कि सबसे छोटा कौन सा हुआ, सबसे छोटा अगर देखा जाए तो ये वाला छोटा है, ठीक है। तो आप लिखोगे सबसे पहले यहाँ पर 3, यानी कि 35,11,712, जो कि छोटा है। किससे छोटा है ये, इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर हमें बताना है, जो कि है 65,83,451, ठीक है। फिर ये किससे छोटा है, ये छोटा है 67,45,865, ओके। और ये किससे छोटा है, ये छोटा है 72,61,561, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें अरेंज करोगे छोटे से बड़े फॉर्म में। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बड़े से छोटे के फॉर्म में आपको अरेंज करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं, आपको इनको सबसे बड़े से छोटे के फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा ये वाला, जो कि है 1,43,49,355। फिर इससे थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, तो स्टूडेंट पहले तो आपको इनके नंबर ऑफ डिजिट देखते हैं, ठीक है। इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। इसमें भी 8 डिजिट है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। अगर हम देखें दोनों में 8 डिजिट है, पर दोनों में 1 और 7 में 7 बड़ा है, तो यानी कि सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, ठीक है। 7,25,47,166। फिर इससे थोड़ा सा छोटा है ये वाला नंबर, ठीक है। फिर इससे थोड़ा सा छोटा कौन सा नंबर है, दैट इज दिस वन, एंड सबसे छोटा नंबर है ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें अरेंज करोगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज फॉर्मिंग नंबर्स फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। कुछ गिवन डिजिट से हम नंबर को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ए पॉइंट दिया है, टू फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट अरेंज द डिजिट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको जब भी बड़ा नंबर फॉर्म करना है गिवन डिजिट में से, तो आपको क्या करना है, डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बड़े से छोटे के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 3 9 7 2 4 8 एंड 6 इज, तो इसमें आप देखोगे कि 9 पहले आएगा क्योंकि वो बड़ा है, फिर 8 7 6 4 3 2, ठीक है। दिस इज द डिसेंडिंग वन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट अरेंज द डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब भी आपको स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा गिवन डिजिट में से, तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े फॉर्म में अरेंज कर दोगे, ठीक है। जैसे कि आपको 7 डिजिट का नंबर दिया है 3 9 7 2 4 8 एंड 6, तो इसमें आप लिखोगे नंबर को 23,46,789, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द डिजिट 2 8 0 3 4 7 एंड 6। अब इसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, तो कभी भी आप 0 से स्टार्ट नहीं करोगे क्योंकि गिना नहीं जाएगा, वो फिर कितने डिजिट का माना जाएगा, 6 डिजिट का माना जाएगा फिर तो ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 0 से पहले, मतलब कि 0 को बाद में रखना है और उससे पहले जो थोड़ा सा बड़ा नंबर है उसको आगे रख देना है, ठीक है। यानी कि जो आंसर होगा आपका, जो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर होगा, वो होगा आपका 20,34,678, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे अरेंज करोगे। ओके स्टूडेंट,
Now student, the next topic over here is counting in tens, hundreds and thousands. To count in tens, hundreds or thousands means to add 110, 100 और 1000 each time. जब हम काउंट करते हैं 10, 100, 1000 में, तो इसका मतलब होता है कि हम ऐड कर रहे हैं 110, 100 और 1000 को, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, टू ऐड 10 ऐड 1 एट टेंस प्लेस। ओके, अगर हमें 10 को ऐड करना है तो इसका मतलब हमें 1 को ऐड करना होगा टेंस के प्लेस में, ठीक है। यानी कि 57,45,360 है, तो इसमें 10 हम ऐड करेंगे, यानी कि बस 1 को ऐड करना है उस टेंस प्लेस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 57,45,370, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी के नंबर भी हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज टू ऐड 100 एंड ऐड 1 एट 100 प्लेस। अगर हम ऐड कर रहे हैं 100 को, तो हम 1 को ऐड करेंगे 100 प्लेस में, ठीक है। जैसे कि 57,45,360 है, तो 3 में हम 1 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 460, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर जो आपको इजी तरीके से आ जाएगा। ओके, ऐसे ही ये वाला भी है। नेक्स्ट थिंग इज टू ऐड 1000 ऐड 1 एट 1000 प्लेस। अगर हमें ऐड करना होता है 1000 तो हम 1 को ऐड करेंगे 1000 प्लेस में, ठीक है। जैसे कि आपको दिया है 57,45,360, तो इसमें 1000 का जो 1 है वो ऐड हो जाएगा 1000 प्लेस में, तो ये हो जाएगा 57,46,360, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1E। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर विद द गिवन डिजिट। गिवन डिजिट से आपको बड़ा नंबर और छोटा नंबर फॉर्म करना है। जैसे कि पहला आपको दिया है ये नंबर्स, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले से डिसेंडिंग में अरेंज कर दो बड़ा नंबर बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1। ओके, सो द नंबर विल बी लाइक 98,75,421। और छोटा नंबर अगर हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9। सो द नंबर विल बी 12,45,789, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नंबर्स फॉर्म करने हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फॉर्म द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर विद द गिवन डिजिट्स, यू मे रिपीट द डिजिट, ठीक है। तो बड़ा नंबर और छोटा नंबर फॉर्म करना है और हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 3748, ओके। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ऐसे कर सकते हो 887743, ओके। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। और अगर छोटा नंबर हमें फॉर्म करना है तो आप लिखोगे 33447778, ठीक है। तो इस तरीके से एक छोटा नंबर भी फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको बड़ा और छोटा नंबर बनाना है। नेक्स्ट थिंग इज काउंट इन 100 स्टार्टिंग फ्रॉम। यहाँ पर आपको 100 से काउंट करना है, 100 जंप करने हैं, ठीक है। जैसे कि 57,28,605 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 57,28,705। 6 में 1 को ऐड कर दो तो 7 हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही फिर आगे हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 57,28,805, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 57,28,905, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर्स को लिखोगे, उन्हें अरेंज करोगे, ओके। Next thing is, the next topic is estimation or rounding of numbers. To express a number as a nearest convenient number in tens, hundreds, thousands, etc. To make it easy to understand, remember and talk is called estimation, approximation or rounding of numbers. सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब भी हमें नंबर को एक्सप्रेस करना होता है नियरेस्ट कन्वीनियंट नंबर में, तो हमें राउंड ऑफ करना होता है, एस्टिमेशन पुट करना होता है, अप्रॉक्सीमेशन पुट करना होता है। ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन वी से दैट मोर देन 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर, इट डज नॉट गिव एन एग्जैक्ट अकाउंट, इट डज नॉट गिव एन एग्जैक्ट काउंट। तो अगर हम बोलते हैं कि मोर देन 1 लाख पीपल ने विजिट किया है बुक फेयर को, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे, बस वो मोर देन बोल रहे हैं, ठीक है। द पीपल मे बी मोर इन नंबर और अप टू लेस देन हाफ लाख, ओके। या तो वो ज्यादा हो सकते हैं या फिर वो लेस देन हाफ हो सकते हैं, ठीक है, लेस देन हाफ लाख हो सकते हैं। So student, now rules of rounding off is given. First one is find the rounding digit first. पहले तो आपको rounding digit को find करना है। If we have to round off the numbers to the nearest 10, the rounding digit is the digit at tens place. तो अगर हमें nearest 10 में rounding off करनी है तो जो rounding digit होगी वो tens place में होगी, okay.
if we have to round off the numbers to the nearest 100, the rounding digit is the digit at 100 place and so on. तो rounding digit जो है वो 100 place में होगी और ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा. Next thing is, if the digit to just right of the rounding off is 0, 1, 2, 3 or 4, keep the rounding digit as it is. तो rounding digit को हम as it is ही रखेंगे and change every digit to the right of the rounding digit to 0. और जो बाकी के digit है right side में वो 0 हो जाएंगे. ठीक है. For example 154 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 बोला है, नियरेस्ट 10 बोला है तो हम इसको वंस को देखकर चलेंगे. 4 छोटा है 5 से तो इसलिए 150 50 हो जाएगा. ठीक है, 150. ऐसे ही आपको नंबर दिया है 4218, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 बोला है, 100 बोला है तो हम 10 को देखकर चलेंगे जो कि 5 से छोटा है तो ये हो जाएगा 4200. ठीक है. Now next thing is, if the digit to just right of the rounding digit is 5, 6, 7, 8 or 9, add 1 add कर देंगे to the rounding digit and change every digit to the right of the side, right of the digit to 0. और बाकी के digit क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे. ठीक है. जैसे कि 5648 है, उसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 1000 में. 1000 बोले तो 100 को देखेंगे जो कि बड़ा है 5 से तो ये हो जाएगा 6000. ठीक है, 1 ऐड हो जाएगा उसमें. नेक्स्ट थिंग इज 4,50,321 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट लाख. तो हम लाख बोल रहे हैं पर हम इसको देखकर चलेंगे 5 के इक्वल है तो ये हो जाएगा 5 लाख. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे करोगे. नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट एक्सरसाइज 1F. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द टेबल बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस 100 and 1000. नियरेस्ट 10, 100, 1000 में हमें राउंड ऑफ करना है. ठीक है, जैसे कि अगर हमने फर्स्ट वाला दिया है 12,57,823 तो इसमें हमें नियरेस्ट पहले 1 में राउंड ऑफ करना, नियरेस्ट 10 में हमें राउंड ऑफ करना है. 10 बोले तो 1 को देखेंगे, 10 में 2 है, 1 में क्या है 3 है जो कि 5 से छोटा है तो ये हो जाएगा 12,57,820. ठीक है. अब ऐसे ही 100 में बताना है. 100 बोला है तो हम 10 को देखकर चलेंगे जो कि 2 है जो छोटा है 5 से तो ये हो जाएगा 12,57,800. ओके. नेक्स्ट बोला है 1000, तो 1000 बोले तो 100 पे इसको देखकर चलेंगे यानी कि 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 12,58,000. ओके, तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करोगे. ठीक है स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 14 crore 88 lakh किलोमीटर, राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट करोड़ किलोमीटर. नियरेस्ट करोड़ किलोमीटर में हमें इसे राउंड ऑफ करना है. तो यहाँ पर करोड़ बोला है, 10 करोड़ नहीं बोला है तो हम 10 लाख को लेकर चलेंगे जो 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 15 करोड़. ओके, किलोमीटर राउंड ऑफ. ओके, ठीक है स्टूडेंट. Now student, the next topic is Roman numerals. Ancient Roman were not aware of the modern place value system. Now यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो ancient Roman है वो aware नहीं थे किससे, modern place value system से. They did not have zero in their number system. उनके number system में zero नहीं था. They used only 7 basic symbols in the Roman numeral. उन्होंने सिर्फ 7 basic जो symbol होते हैं Roman numeral में वही use करे. The zero and the other numerals from 1 to 9 were invented by the ancient Indians. हिंदूज. अब जो 0 है और जो दूसरे न्यूमरल्स है 1 to 9 ये एंशिएंट इंडियंस ने इन्वेंट किया था यानी कि हिंदूज ने इन्वेंट किया था. एंड वर कैरीड बाय द अरब, और अरब ट्रेडर्स इनको आगे लेकर चले गए थे टू यूरोप में. सो दीज वर कॉल्ड हिंदू अरेबिक न्यूमरल. तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल बोलते हैं. ठीक है. They were written in different script, different script में लिखे गए. Their modern form 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are called international digit. तो इनके जो मॉडर्न फॉर्म है इनको हम इंटरनेशनल डिजिट बोलते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है रोमन न्यूमरल्स और यहाँ पर आपको वैल्यू इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दे रखे हैं. तो यहाँ पर आपको रोमन न्यूमरल दिया है फर्स्ट यानी कि I दिया है, V है, ये X है, L, C, D, M. तो I का आपको दे रखा है वैल्यू इन हिंदू अरेबिक में 1, V का 5, X का 10, L का 50, C का 100, D का 500 और M का 1000. ठीक है. The rules for forming various Roman numerals are common for I, X, C and M. अब यहाँ पर बोला है कि जो रूल्स है जब हम बनाते हैं रोमन न्यूमरल को वो कॉमन है किसके लिए, I, X, C और M के लिए. ठीक है. The rules for V, L and D are different. पर जबकि जो V, L and D का जो रूल है वो काफी ज़्यादा डिफरेंट होता है. ठीक है. But the rules are common for, पर इनके लिए अगर देखा जाए तो कॉमन है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर यहाँ पर एक नोट दिया गया है आपको. न्यूमरल्स V, L and D आर नेवर रिपीटेड एंड दे आर नेवर सब्ट्रैक्टेड. यानी कि जो V, L and D है कभी भी वो रिपीट नहीं होते ना ही वो सब्ट्रैक्ट होते हैं. ठीक है. Now the next is example 1 given. Write the following Hindu Arabic in Roman numeral. तो हिंदू अरेबिक को आपको रोमन न्यूमरल में लिखना है. आपको दे रखा है 89. 89 को आप बस थोड़ा सा एक्सपेंड कर दोगे यानी कि इसे ब्रेक कर दोगे आप. ठीक है. तो 89 कैसे आता है, 50 + 30 + 9 दैट इज 89. ओके.
अब 50 क्या होता है हमारा, रोमन न्यूमरल में L होता है, और 30 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपल एक्स से, ठीक है, और 9 को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई एक्स से, ठीक है। तो इन सबको मिला देंगे तो आपका ये नंबर आ जाएगा 89, ओके। ऐसे ही 357 है, तो 300 प्लस 50 प्लस 7, 300 के लिए 3 बार C, ठीक है, 50 के लिए L और 7 के लिए V आई, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल इन हिंदो अरेबिक न्यूमरल। तो रोमन को हमें चेंज करना है हिंदो अरेबिक न्यूमरल में। आपको यहाँ पर दिया XC IX, तो यहाँ पर अगर हम देखें XC को हम सेपरेट कर देते हैं, IX को हम सेपरेट कर देते हैं, तो XC होता है 90, ठीक है, यानी कि हमने 100 में 10 को माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 90 आ गया, ठीक है, और 90 में हमने 9 को ऐड कर दिया, IX का मतलब 9 होता है, तो ये हो जाएगा 99, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको अरेंज करना है। नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम्पल थर्ड, ऐड दिस रोमन न्यूमरल टू दिस वन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें पहले बताना है कि है कौन से रोमन न्यूमरल। इनको पहले आप हिंदू अरेबिक में चेंज करोगे, तो ये हो जाएगा 167 और ये है 25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 192 आएगा। इसको आपको रोमन न्यूमरल में भी लिखना है, जो कि है CXCII, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल 4 में आपको दिया है सब्ट्रैक्ट DCXE माइनस CCL। सो DCXE का मतलब क्या है, डेट इज 690, ओके, एंड उसमें से हम माइनस कर रहे हैं CCL यानी कि 250, क्योंकि दो बार C है और एक L मतलब 50 है, तो 250, इन दोनों को माइनस किया तो 440 आया, जो कि है CDXL, ओके। Now student, here comes the exercise part, exercise 1G. So the first question is write Roman numeral for the following Indo-Arabic numeral. तो following Indo-Arabic numeral का आपको Roman numeral लिखना है, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट आपको फर्स्ट वन दे रखा है 49, सो इसका आप कैसे लिखोगे, XLIX, ओके, दिस इज 40 एंड दिस इज द 9, ओके। ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स के भी हिंदू अरेबिक फॉर्म, बाकी जो हिंदू अरेबिक नंबर है उनका आपको रोमन न्यूमरल फॉर्म लिखना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल। अब फॉलोइंग रोमन न्यूमरल का आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया XLVII, ओके, तो यहाँ पर XL का मतलब क्या हो गया इधर, सो XL का मतलब यहाँ पर 40 हो गया है, ठीक है, मतलब 4 आ जाएगा हमारा किसमें, 10th प्लेस में, और VII का मतलब है 7, ओके, तो ये हो जाएगा 47। तो इस तरीके से आप रोमन न्यूमरल को चेंज करोगे हिंदू अरेबिक न्यूमरल में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज ऐड द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर दे रखा है LX प्लस CL, सो LX जो है वो क्या हो जाएगा, LX हमारा है 60, और 60 में अब आप ऐड कर दोगे CL को, CL that means CL means 150, सो आप 150 में ऐड कर दो 60 को, तो कितना हो जाएगा, that is 210, ओके। फिर आप 210 को रिप्रेजेंट करोगे किसमें, रोमन न्यूमरल में। 200 यानी कि 2 बार C आ जाएगा, ओके, और 10 यानी कि 1 बार X, ओके, सो दिस इज 210। तो इस तरीके से आप पहले इसे हिंदू अरेबिक में लिखोगे, उसे सॉल्व करोगे, फिर इसे आप लिखोगे रोमन न्यूमरल में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर दिया XCV माइनस XLVI, ओके, सो XCV क्या हो जाएगा हमारा, सो दिस इज 95 एंड दिस वन इज 46, ओके, सो 95 माइनस 46 करेंगे आप, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, पहले आप इसे हिंदू अरेबिक में लिखोगे, ओके। 15 में से पहले आप 6 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ये, सो 1s प्लेस में 9 आ जाएगा, एंड देन 8 माइनस 4 इज 4, सो द आंसर इज 49। और 49 को आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर 49 को आप लिखोगे XL एंड देन IX, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे रोमन न्यूमरल में लिखोगे, ओके स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट ग्रेटर देन और लेस देन। आपको कंपेयर करना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर दिया है XXXV एंड दूसरी तरफ दिया है आपको XL, ठीक है। तो XXXV का मतलब होता है 35 और XL का मतलब क्या हो जाता है, 40 हो जाता है, ठीक है। सो यानी कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, इन दोनों में से बड़ा हुआ XL, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पहले से हिंदू अरेबिक में लिखना है, फिर आपको इसे कंपेयर करना है, ठीक है। Now the next question is fill in the blanks. First one, dash L and D are never repeated. कौन कौन से कभी रिपीट नहीं होते हैं, वो है V, L and D. So कौन से नहीं रिपीट होते कभी भी, वो है V, L and D, ठीक है। नेक्स्ट वन है dash X and C are repeated not more than 3 times. कौन है जो 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं होते हैं, तो वो है I, X and V.
आई, एक्स एंड वी जो है वो कभी भी 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन इज आई इज सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम वी एंड आई को सिर्फ हम वी और एक्स से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो आई इज सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम वी एंड एक्स। ओके, तो यहाँ पर आप एक्स लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको हर एक एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।